beautiful Sunday morning to our Earth Day celebration, organized by Vidya Ashram Public School at the vibrant and green heart of Malviya Nagar Society Park. A very special welcome to our respected Principal Ma'am, whose constant guidance and visionary leadership continue to inspire us all to connect education with meaningful action. Today, as we gather under the open sky, surrounded by nature, we are reminded of a simple but profound truth. The earth does not belong to us. We belong to the earth. Our school believes that education is not confined within four walls. It is about nurturing responsible, conscious, and compassionate individuals who understands their duty toward the planet we call home. In this spirit, we have curated a short but impactful program that reflects our commitment to raising awareness and encouraging action. First, we will witness an adorable yet powerful skit presented by our UKG children and their teachers. Through their innocent voices and meaningful performance, they will remind us of the beauty of our earth and the importance of taking care of it from an early age. Following that, our talented 5th grade students will perform a Nukkad Natak, a street play with a strong message. They will highlight pressing environment issues and share ways we can all become part of the solution, not the pollution. Both these performances aim to not just entertain but to awaken our sense of responsibility. We hope to inspire small changes in daily habits like saying no to plastic, planting trees, conserving water, and teaching our children, society members, teachers, and children who have come together to make this event possible. Your presence here today is a powerful sign that we care not only about our own future but about for the future of generations to come. Let us celebrate this Earth Day not just with words but with actions. Let us pledge to walk a little more lightly on this earth and leave it greener and cleaner. With that, let the celebration begin. Thank you and enjoy the performance. I love the sky, the earth, the air. I show my planet how I care. Pick up trash and plant a seed. A better world is what we need. Good morning and a very warm welcome to all the residents of Malviya Nagar. Today we have gathered here to celebrate a day that reminds us of our responsibility. A day that speaks for the trees, the rivers, the ocean and the skies. Yes, we are here to honor Mother Earth on this special occasion of Earth Day. Kindness is not just a feeling, it's an action. And our earth needs kind action now more than ever. Picking up litter, planting a sapling, or saving a drop of water. These are little ways to show big kindness to our planet. Let's not just speak of kindness, let's show it by respecting nature, protecting animals, and living gently on this earth, because kindness to earth is kindness to ourselves. We breathe its air, drink its water, and live on its land. Now, Navika will say a few lines about kindness. My name is Navika Mathur. I study in UKDB. My class teacher name is Priti Mehta ma'am. My school name is Vidyaashram Public School. Kindness, saying please and thank you, helping someone when they feel blue, with eating birds,
watering trees, spreading love, a gentle breeze. Thank you. Now next, we have a thoughtful and heartwarming skit presented by our talented UKG teachers and students. This delightful performance will gently remind us of the earth, importance of showing kindness to our Mother Earth. Through their engaging act, they will highlight simple yet powerful ways we can care for nature and contribute to a cleaner, greener planet. So let's sit back and allow this lovely performance to plant the seeds of love and responsibility for our beautiful planet. इस कहानी की शुरुआत होती है उस धरती माँ से जो हमें अन्न देती है, हवा देती है, जीवन देती है। यहाँ एक किसान अपनी बेटी को प्रकृति के महत्व को सिखा रहा है। अब किसान अपनी बेटी के साथ धरती माँ की सेवा में जुटा हुआ है। वह अपनी बेटी से कह रहा है, आओ तुम भी मेरे साथ मिलकर बीज डालो ताकि अच्छी फसल हो सके। फिर वह अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी ये पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? किसान मुस्कुराते हुए बोलता है, ये हमें अन्न ही नहीं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और ठंडी छांव भी देते हैं। बरसात आती है और बीच में से पौधे निकल आते हैं। यह नजारा देखकर किसान खुशी से झूम उठता है। और किसान की बेटी अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी ये पौधे क्यों मुरझा गए हैं? शायद पानी के अभाव के कारण। फिर वह कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है पर वह असफल हो जाता है। फिर वह हैंडपंप से पानी निकालने का प्रयास करता है पर इस बार भी उसके हाथ निराशा ही लगती है। फिर वह सबसे गुजारिश करता है कि अगर फसल नहीं हुई तो हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? हम भूखे मर जाएंगे। खेती करना ही मेरा काम है। अगर फसल नहीं हुई तो मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। और फिर वह और उसकी बेटी बहुत उदास हो जाते हैं। जहाँ एक ओर किसान अपनी धरती माँ के इस रूप को देखकर उदास है, वहीं दूसरी ओर लकड़हारा पेड़ काटने के लिए चला आ रहा है। वह इस अमूल्य संपत्ति को बिना सोचे समझे क्यों काटे जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा पैसा और मुनाफा कमाने के लिए। पेड़ भी बोल रहे हैं हमें मत काटो। अब लकड़हारा लकड़ी की गट्ठर लेता है और बेचने के लिए दुकान की ओर चल देता है। जहां लकड़हारा लकड़ी बेचकर पैसा कमा रहा है, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी के बच्चे पार्टियों की चमक में इतने डूब चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी इस हरकत से प्रकृति रो रही है। रात भर संगीत, चमकती लाइट और नाच गाने की महफिल में सब कुछ चल रहा है, बस रुक गया है तो धरती का चैन। और डीसी
नजर आ रही है। पर यह क्या, जैसे ही वह अपने पेड़ पौधों की हालत देखती है, उनका चेहरा उदास और चाल थकी हुई हो जाती है। वह कहती है, मानव ने मेरा क्या हाल बना दिया है। इस दृश्य ने हमें झकझोर दिया। क्या हमने सच में धरती माँ को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया? वह कहती है, पेड़ों को मत काटो, पानी बर्बाद मत करो, प्लास्टिक का उपयोग मत करो। अपना यह हाल देखकर सबसे विनती करती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और अब सभी आपस में लड़ने लगते हैं और अपनी गलती ना मानकर एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। वह एक दूसरे से बोल रहे हैं कि ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है। और बहुत देर लड़ने के बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वे धरती माँ के पास माफी मांगने जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। अब लकड़हारा कहता है कि हमें लकड़ी नहीं काटनी चाहिए बल्कि पौधों को लगाना चाहिए। पेड़ पौधे मत कर नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। अब लड़के को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, पानी बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी एक एक बूंद बहुत ही मूल्यवान है। जल है तो कल है। इतने में महिला भी आती है और कहती है, प्लास्टिक से हमें अपनी धरती को बचाना है। कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना है और कपड़े के बैग का इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक हटाओ, दुनिया बचाओ। और यह नजारा देखकर धरती माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है और फिर से बरसात आती है और पेड़ पौधे धरती माँ के साथ साथ सभी खुशी से झूम उठते हैं। एक पौधा लगाना है, धरती को बचाना है। हर बच्चा संकल्प करे, हर दिन हरियाली का पर्व बने। धूप हो या बारिश आए, हम पौधे की सेवा निभाएं। एक पौधा, एक जीवन है, धरती माँ का ये उपवन है। सभी तालियों के साथ इनका मनोबल बढ़ाइए और अब दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि अब बारी है हमारे नुक्कड़ नाटक की, जो कि क्लास 5 के बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। Now this play is being presented by the talented students of grade 5 who are coming forward with their meaningful message for society through their performance. सुनिए सुनिए
ये संदेश देना चाहते हैं। ये कहानी है हमारी धरती माता की। क्या आप जानना चाहते हैं कि धरती माता को क्या हुआ? चलिए देखते हैं। हाय 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 हाय। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बापू, यह नारी कौन है? असुवन भरी जिसकी सारी है। आओ चलकर पता करें, दुख शायद के दूर करें। सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो रे भैया, सुनो रे बहना। कौन खड़ी है शोक की मारी, आई कौन सी पे विपदा भारी। सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो रे भैया, सुनो रे बहना। ये विपदा की मारी है धरती माता हमारी, माता हमारी संतान घाट से पीड़ित, पग पग पे ये की गई प्रताड़ित। हे माँ हमें क्षमा करो, हुई कौन सी भूल यह भी बतला दो, बतला दो, बतला दो, बतला दो, बतला दो। मैं दुखी नहीं अपने हेतु, पर रूह कांप मिल जाती है जब मेरे संतानों की दशा दयनीय सी हो जाती है, दयनीय सी हो जाती है। मैंने रखा विस्तार से कहो, यूं मन ही मन ना तरसो। क्या क्या इतनी सुंदर नहीं है धरती? स्वच्छ हवा भी यहाँ पेड़ों से थी बहती। हमने तो बस ये देखा और जाना है, ऑक्सीजन सिलेंडरों से ही लेना है। अगर वृक्ष जीवन हेतु इतने ही आवश्यक थे तो क्यों काटे गए, क्यों नष्ट हुए? क्या कहूँ और कैसे यह हुआ? मैं शोक में संतानों में भ्रष्ट हुई। अपने ही प्राणदाता ने मुझे अपने ही स्वार्थ हेतु काट काट कर मुझे नष्ट किया। अब जंगल खेत सब सूने हैं, पंछी पंछी छाया बिन तपते हैं, तपते हैं भाई, तपते हैं, तपते हैं भाई, तपते हैं। अब श्वासों में भी विष घुलता है, मानव शुद्ध हवा को भी तरसता है। मानव से ज्यादा अब धरती पर वाहन है, प्रतिदिन जो शोर मचाते हैं वह ध्वनि वह वायु प्रदूषण भी फैलाते हैं, फैलाते हैं, फैलाते हैं, फैलाते हैं। रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं, खुद का जीवन नष्ट कर बैठे हैं। सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो रे भैया, सुनो रे बहना। नदी सरोवरों का भी है कुछ कहना, धरती माँ की हम भी श्रृंगार थे, नदियों सरोवरों में अटखेली करते थे, प्रकृति को हरियाली से भरा रखते थे, मानव की प्यास बुझाते थे। पर मानव नृत्य स्वाद में भगवान अब दानव बन रहे हैं, अमृत रूपी जल को विश्व कर बैठे हैं। नदियों तालाबों में कारखानों का जहर घोला है, जल की कीमत को कम तोला है। हाँ, मानव अपने दुष्कर्मों को खुद ही भोगना है, खुद ही भोगना है। जल जल नदियों से मुफ्त में मिलता था तो बाजारों में अब कैसे बिकता है?
थे तुम, नदी हो रही थी तब कहाँ थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है जिंदगानी। टिक टैक टिक टैक टिक टैक टिक टैक, सोचो तो क्यों है आज ये तेरा पानी, ये चुपचाप पानी तू, चलो बदल देंगे कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम, दूसरे की धरती तब कहाँ थे तुम, नदी हो रही थी तब कहाँ थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है जिंदगानी। टिक टैक टिक टैक टिक टैक टिक टैक, है कब से नाराज ये गुस्सा गुस्सा पानी, ये क्यों उदास पानी क्यों, चलो बदल देंगे कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम, दूसरे की धरती तब कहाँ थे तुम, नदी हो रही थी तब कहाँ थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है जिंदगानी। टिक टैक टिक टैक टिक टैक टिक टैक टिक टैक टिक Now, I would like to invite our esteemed principal ma'am to come and share a few words with all of us. Thank you so much, ma'am. Thank you, parents, for sparing your valuable time. Thank you, मालवीय नगर residents. आप यहाँ आए, आपने आज का शो की शोभा बढ़ाई, इसके लिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। हमारे बच्चों ने कुछ भी नया नहीं किया. We all are aware about this. We should not spoil our Mother Earth, but still we are not taking care of Mother Earth. हमें ये सब पता है कि हमें अपनी धरती माँ का ध्यान रखना है. हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको स्वच्छ पानी मिले, साफ धरती मिले, हरे भरे खेत मिले, शुद्ध खाने को मिले, ये सब के बारे में हम पहले से जानते हैं. बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. हमारे बच्चों ने सिर्फ हमें हमारी पावर्स को याद दिलाने के लिए छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया है विद्याश्रम परिवार ने, जिसके आप सब साक्षी बने हैं. उसका तहे दिल से धन्यवाद. मैं धन्यवाद दूंगी भटनागर जी का, जिन्होंने हमारे लिए ये सब अरेंजमेंट किया, आप लोगों तक मैसेज कन्वे किया कि आप प्लीज आज आए यहाँ पर. जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी यहाँ मौजूद है, पूरी भटनागर जी की जो टीम है, उन सबका धन्यवाद दिल से. परमिंदर सर हमारे पीटीआई सर हैं, उनके फादर भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी पूरी हमारे को सपोर्ट किया. जो यहाँ के पार्षद जी हैं दयाराम जी, उन्होंने भी, उनसे भी मैं कांटेक्ट में थी, उन्होंने सब क्लीनिंग करवाना हमारे बच्चों के लिए, वो सब एक दिन पहले किया. तो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया. बस एक जो छोटी सी रिक्वेस्ट हमारे बच्चों ने आप सभी से करी है, कीप द प्लैनेट क्लीन फॉर द फ्यूचर. हम छोटी छोटी चीजें हैं, मैटर बहुत करती हैं. मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल की, ठीक है, लेकिन मैं कार पूल करके जाती हूँ. क्यों जाती हूँ? कि हम फ्यूल को भी तो सेव करें, पोल्यूशन को भी तो कम करें. तो मेरे साथ मेरी कार में मेरे स्कूल की 4 टीचर्स, जितने लोग बैठ सकते हैं वो मेरे साथ जाते हैं. तो ये सब इनिशिएटिव छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बट इट मैटर्स अ लॉट. अगर हम छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेंगे तो इट विल ब्रिंग अ बिग चेंज इन आवर सोसाइटी. और हम हमारे फ्यूचर जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए एक हेल्दी मदर अर्थ छोड़कर जाएंगे. यस और नो? आप अग्री करते हैं मेरी बात से? तो अग्री करते तो जोर से हो जाए. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. धन्यवाद आपका. जो इनिशिएटिव हमारे बच्चों ने आज लिया है, मैं आप सबसे उम्मीद करूंगी कि छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखें. कार सबके घर में है आजकल. तो
उसकी धुलाई के लिए पानी वेस्ट ना करें। एक कपड़े से भी हम गीला करके उसको साफ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर। तो आप बाल्टी भर के पानी का इस्तेमाल ना करें। मेरे घर की भी कार की सफाई होती है, उसको इंस्ट्रक्शंस है, हाफ बकेट से भी कम पानी लेना है और उसी में क्लीन करना है। वो रोज आता है लेकिन उसको इंस्ट्रक्शंस है। मैं ये क्यों सोचूं, वो तो रोज अपना आंगन धोते हैं, मैं क्यों नहीं धोऊं? हमसे ही पहल होगी, पहले मुझसे पहल होगी, तब लोग करने लगेंगे। हम दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पहले हमें इनिशिएटिव लेना है, तब हम किसी और से एक्सपेक्ट करेंगे। एक्सपेक्टेशन रखना ही क्यों, ऑटोमेटिकली सब इंस्पायर होने लग जाएंगे। यस और नो? अग्री? सो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगी, कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, ज्यादा हरियाली रखें। पॉलिथीन का नो, बिग नो टू पॉलिथीन। आज भी देखिए पेपर कप्स आए हैं बच्चों के पानी पीने के लिए, हम पॉलिथीन नहीं यूज करते। बच्चे अगर पिकनिक पर जाते, वी डोंट कैरी पॉली बैग्स, हमने कपड़े के बैग खरीदे हैं जिसमें उनके टिफिन या वाटर बॉटल्स हम कैरी करते हैं। तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं। अब कुछ चीजें प्लास्टिक के पैकेट्स में ही आती हैं, तो वी कैन नॉट अवॉइड दैट, बट डोंट थ्रो इट हियर एंड देयर। हम कार में भी जब ट्रैवल करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम चिप्स खाया पैकेट कार से बाहर, ट्रेन से बाहर, बसेस से बाहर, हम उसको अपने साथ कैरी करें, डस्टबिन में उसको एक जगह डालें जिससे कि एनिमल्स भी उसको ना खाएं। उसमें कुछ खाना रह जाता है, उसकी खुशबू से जानवर भी उस पॉलिथीन को खाते हैं एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर द एनिमल्स। तो उनकी रक्षा के लिए भी हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे जो बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, यहाँ पर काफी फैमिली मेंबर्स भी होंगे, तो हमारे बच्चे कुछ एक टोकन ऑफ लव लेकर आए हैं आपके लिए। हर फैमिली से एक मेंबर आगे आए और हमारे बच्चों से वो एक टोकन ऑफ लव रिसीव करें।